अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? हम अपना टेस्ट 4 जो है T4 उसको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं और कॉम्प्रिहेंशन, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पर जो है वो आपका ये मुश्तमिल है। और आपको इससे पहले पता है कि सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का एक टेस्ट आप ऑलरेडी कर चुके हैं, सो दिस इज़ योर सेकंड टेस्ट। और कॉम्प्रिहेंशन का तो ऑन द ट्रॉट आपका 4th टेस्ट है। सो पहले हम कॉम्प्रिहेंशन पैसेज बेटे स्टार्ट करें। पहले वी ऑल नो कि हंटर्स अप्रोच अपनानी है, क्वेश्चन पहले पढ़नी है। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स हैव एन एबिलिटी ऑफ एक्लिमेटाइजेशन। दिस इज द फर्स्ट MCQ. Then can adjust to only one change in the environment at a time, are successful in adjusting themselves to changes in their environments, can adjust to natural changes in the environment but not to artificially induced changes. E. That have once acclimatized themselves to an environmental change can acclimatize themselves more rapidly to subsequent changes. Then next one, second, it can be inferred from the passage that every change in the environment requires acclimatization by living things. Plants and animals are more alike than they are different. Biologists and physiologists study essentially the same things. The explanation of acclimatization is specific to each plant and animal. As science develops, the connotation of the terms may change. Then number 3 पर आप जाएं तो वो कहते हैं कि according to the passage, acclimatization is similar to adaptation, is more important today than it was formerly, involves positive as well as negative adjustment, may be involved with a part of organism but not with the whole organism, is more difficult to explain with the more complex present day environment than it was formerly. Then number 4 पर अगर आप जाएं तो वो कहते हैं कि by inference from the passage, which one of the following would not require the process of acclimatization? An ocean fish placed in a lake, a shallow diver making a deep dive, shallow कहते हैं not deep. Then number C, an airplane pilot making a high altitude flight, a person going from daylight into a darkened room, a businessman moving from Denver, Colorado to a New Orleans, Louisiana. Then number 5 पे जाएं जी, according to a passage, a major distinction between acclimatization and adaptation is that acclimatization is more important than adaptation, is relatively slow, and adaptation is relatively rapid, applies to adjustments while adaptation does not always apply to adjustments, applies to terrestrial animals and adaptation to aquatic animal, then is applicable to all animals and plants, and adaptation only to higher animals and man. The word inured in line 20 most likely means exposed, accustomed, attracted, associated, in love with. Then number 7, the function of the paragraph 2 in this passage as a whole is to eliminate the human element of acclimatization, explain the role of scientists in acclimatization research, provide a definition corresponding to the example cited in paragraph 1. अब paragraph 1 जहाँ आ गया, मैंने आपको बताया था रेफरेंस की जब हम बात करेंगे तो फिर जहाँ भी रेफरेंस आएगा उसके अकॉर्डिंगली हम चीज़ों को यूटिलाइज करेंगे. डिटेल द एनवायरमेंटल एडजस्टमेंट्स एनिमल मेक टू देयर एनवायरमेंट and show the links between important terms used elsewhere in the essay. Then number 8, the author is most likely a researcher in the field of adaptive mechanism, a student of biology, a veterinarian looking to explain an issue of importance, the editor of a scientific publication, the founder of a new field of science. So अब हम आते हैं बेटे पैसेज पे जो हमारा important task है. As in the case of so many words used by the biologist and physiologist, the word acclimatization is hard to define. With increase in scientific knowledge and understanding, meanings of the words change. ये पीछे उसने ऑप्शन दी हुई थी कि उसका एक पर्पज़ ये भी है कि वो इवेल्यूएट करना चाहता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम किस तरह से मुख्तलिफ जो वर्ड्स हैं उनकी कॉनोटेशन जो है वो मुसलसल तब्दील होती रहती है. Originally, the term acclimatization was taken to mean only the ability of human beings, animals or plants to accustom themselves to new and strange climatic conditions, primarily altered temperature. Altered कहते हैं changed,
कि शुरू में क्या फील करते थे कि दैट इज़ ओनली रिलेटेड टू ह्यूमन बींग्स, और ह्यूमन बींग्स में भी जो असल काम है दैट इज़ कि वो एक चेंज टेम्परेचर में, एक ऑल्टर टेम्परेचर में अपने आप को एडजस्ट कर सकें. A person or a wolf moves to a hot climate and is uncomfortable there, but after a time is better able to withstand the heat. Withstand कहते हैं tolerate, bear. But aside from temperature, there are other aspects of climate. So here he is basically जो ऊपर उसने thesis build किया था, the above mentioned thesis, that is basically negated. कहते हैं कि समझा जाता था, लेकिन अब लेकिन के बाद जब भी आप याद रखें बट आएगा, तो बट से पहले वाली जितनी स्टेटमेंट है दैट विल बी निगेटेड. बट असाइड फ्रॉम टेम्परेचर देयर आर अदर एस्पेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट, के उसके अलावा क्लाइमेट के दूसरे एस्पेक्ट्स भी जो हैं वो मौजूद हैं. अ पर्सन और एन एनिमल मे बिकम एडजस्टेड टू लिविंग एट हायर एल्टीट्यूड्स देन दोज इट वाज ओरिजिनली कस्टम टू एट वेरी हाई एल्टीट्यूड्स सच एज those that aviators may be exposed to low atmospheric pressure becomes a factor of primary importance. So ये पीछे उसने दिया हुआ था कि हाई एल्टीट्यूड पे फ्लाई करना जो है वो एक्लेमेटाइजेशन है या नहीं, तो वो उसको कह रहे हैं कि वो एक्लेमेटाइजेशन है. In changing to a new environment, a person may meet new conditions of temperature or pressure and in addition may have to contend with different chemical surroundings. अब temperature आ गया, pressure आ गया, altitude आ गया, chemical surroundings आ गई, ये सारी चीज़ें क्या हैं? All of them are a part of acclimatization. On high mountains, the amount of oxygen in the atmosphere may be relatively small. In crowded cities, a person may become exposed to a relatively high concentrations of carbon dioxide or even carbon monoxide, and in various areas may be exposed to conditions in which the water content of the atmosphere is extremely high or extremely low. Thus, in the case of humans, animals, and even plants, the concept of acclimatization includes the phenomena of increased toleration of high or low temperature, of altered pressure, and of the changes in the chemical environment. So, उसने बता दिया कि acclimatization क्या है? It's a combination of various things. What is it? High or low temperature, altered pressure, and the changes in chemical environment. Let us define acclimatization, therefore, as the process in which an organism or a part of an organism becomes inured to an environment which is normally unsuitable to it. Inured का उसने पूछा हुआ था, तो यहाँ पर आपको लग रहा है कि inured का मतलब क्या है? एडजस्ट हो जाना, आदी हो जाना, यूज्ड टू हो जाना, इस कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल हो, which is normally unsuitable to it or lethal for it. Lethal कहते हैं deadly, fatal, जानलेवा. By and large, acclimatization is a relatively slow process. ये उसने बता दिया, ठीक है. उसमें adaptation और acclimatization का comparison था ना, तो वहाँ आप इसको देख सकते हैं. उसमें ये MCQ भी था. The term should not be taken to include relatively rapid adjustments such as those that our sense organs are constantly making. सेंस ऑर्गन्स की बात कर रहे हैं कि एक्लेमेटाइजेशन को उन चेंजेस के साथ, उन एडजस्टमेंट्स के साथ आप मैच नहीं कर सकते जो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स करते हैं, कॉन्स्टेंटली कर रहे होते हैं. दिस टाइप ऑफ एडजस्टमेंट इज कॉमनली रेफर्ड टू बाय द फिजियोलॉजिस्ट एज एडेप्टेशन, कि वो जो सेंसरी ऑर्गन्स कर रहे होते हैं वो एडेप्टेशन है, ठीक है. एंड दैट इज़ कंपैरेटिवली अ रैपिड प्रोसेस. ये पीछे उसने सवाल पूछा हुआ है, ध्यान से रहिएगा. अब ऊपर वाले पैसेज में देखिए, एक दो चीज़ों के अलावा 10, 12, 15 लाइनों में हमें कुछ, और जो है 20 लाइनों में रादर हमें कुछ भी नहीं मिला, ठीक है. This type of adjustment is commonly referred to by the physiologist as adaptation. Thus, our touch sense soon becomes accustomed to the pressure of our clothes and we do not feel them. We soon fail to hear the tickling of a clock. Obnoxious odors after a time fail to make much impression on us. And our eyes in strong light rapidly becomes insensitive. अब ये उसने एग्जाम्पल दी हुई है कि if a person moves from a lighted place to a dark place, तो जो adjustment है वो क्या है? That is an example of adaptation. उसने adaptation की example के तौर पर जो है इसको quote किया हुआ है. Then the fundamental fact about acclimatization is that all animals and plants have same capacity to adjust themselves to changes in their environment. Now उसने बड़ा clearly बता दिया कि acclimatization
इज़ बोथ वाइटल फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ किसी एक ख़ास ऑर्गेनिज्म तक जो है, ये ख़ास टाइप तक जो है वो महदूद नहीं है। दिस इज़ one of the most remarkable characteristics of living organism, a characteristics for which it is extremely difficult to find explanation। ठीक है, एक बड़ा यूनिक कैरेक्टरिस्टिक, और वाकई मतलब आप अगर इसको जस्ट थोड़े के चंद लम्हे के लिए भी इस पर सोचें तो यू कैन फील कि इंसान वो चीज़ है कि जो -52 डिग्री टेम्परेचर में भी सर्वाइव करता है और +56 डिग्री में भी जो है सिबी में 54, 55, 56 तक भी रिकॉर्ड किया गया। तो 56 डिग्री पे भी, +56 डिग्री पे भी सर्वाइव करता है और -56 डिग्री पे भी सर्वाइव करता है। आप यहाँ पर भी ज़मीन पर भी सर्वाइव करते हैं और 10,000 मीटर की बुलंदी पर भी सर्वाइव करते हैं, मरीख पे भी आप जाके सर्वाइव करते हैं, चांद पे भी जाके सर्वाइव करते हैं। तो ये जो एक्लेमेटाइजेशन इंसान की डेवलप हुई है, दैट इज़ सीरियसली अ वेरी वेरी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक। और मैं फील करता हूँ कि that was the characteristic which basically enabled us to conquer this world। इसी की वजह से जो है वो हम आज दुनिया पर छाए हुए हैं कि हम जैसे मर्जी हालात हों, जंगल में रहना पड़े रह लेते हैं, शहरों में रहना पड़े रह लेते हैं, पहाड़ों में रहना पड़े रह लेते हैं, हर जगह हम जो है सर्वाइवल का रास्ता जो है वो ढूंढ लेते हैं। खैर वापस हम आते हैं अपने पैसेज पे। अकॉर्डिंग टू द पैसेज ऑल एनिमल एंड प्लांट्स, अभी उसने बताया लास्ट लाइन में, बिल्कुल लास्ट पैराग्राफ की पहली लाइन, कि हैव एन एबिलिटी ऑफ एक्लेमेटाइजेशन, सभी के अंदर जो है वो एक्लेमेटाइजेशन की जो है वो एबिलिटी जो है वो मौजूद होती है। क्योंकि अब बी ऑप्शन देखें, वन चेंज वाली तो बात ही नहीं है, उसने कहा हर तरह की चेंज से कर जाते हैं, एडजस्ट कर जाते हैं। सी में देखें, आर सक्सेसफुल इन एडजस्टिंग देमसेल्व्स टू चेंजेस इन देयर एनवायरनमेंट्स। ठीक है, सारी की सारी चेंजेस से नहीं, सम कैपेसिटी की बात हुई थी। कैन एडजस्ट टू नेचुरल चेंजेस इन द एनवायरनमेंट बट नॉट टू द आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड चेंजेस। नहीं, आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड चेंजेस में भी आप कर जाते हैं। ठीक है, आप ये देखते हैं ये स्नो जोन्स बने होते हैं तो उसमें आर्टिफिशियल टेम्परेचर बहुत कम कर दिया होता है लोगों ने, लेकिन फिर भी हम सर्वाइव कर जाते हैं। ठीक है, दैट वंस acclimatize themselves to one environmental change can acclimatize themselves more rapidly to subsequent changes। नहीं, ऐसा नहीं है। एक्लेमेटाइजेशन जो है उसी तरह उसके बकौल ये कंटिन्यूस स्लो प्रोसेस है। Then it can be inferred from the passage that every change in the environment requires acclimatization by living things। ठीक है, कि इन्हें living things नहीं, ज़रूरी नहीं है। Plants and animals are more alike than they are different, ऐसा उसने कोई तस्करा नहीं किया। Biologists and physiologists study essentially the same thing। नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। The explanation of acclimatization is specific to each plant and animal। No, specific नहीं है, general है, ये हर बंदे में, हर plant में जो है वो पाई जाती है। As science develops the connotation of the terms may change। बिल्कुल, शुरू में वो क्या कहते हैं, acclimatization का मतलब क्या था, सिर्फ टेम्परेचर, ठीक है, ऑल्टर्ड टेम्परेचर, बट आहिस्ता आहिस्ता इसमें और चीज़ें भी ऐड हुई, हायर प्रेशर जोन ऐड हुए, इसमें केमिकल एनवायरनमेंट आपका चेंज हुआ, तो ये सारी चीज़ें इसमें बाद में ऐड हुई। सो ऑप्शन ई इज़ द राइट ऑप्शन। देन अकॉर्डिंग टू द पैसेज एक्लेमेटाइजेशन इज सिमिलर टू एडेप्टेशन। ठीक है, इज मोर इम्पॉर्टेंट देन इट वॉज फॉर्मली, इन्वॉल्व्स positive as well as negative adjustment, may be involved with a part of an organism but not with the whole organism, is more difficult to explain with more complex present day environment than it was formerly। तो ऑप्शन ए हमें बड़ा विजिबल है कि अडेप्टेशन से मिलती जुलती है, सिर्फ फ़र्क ये है कि अडेप्टेशन ज़रा जल्दी हो जाती है और एक्लेमेटाइजेशन जो है उसका प्रोसेस थोड़ा स्लो है। By inference from the passage, which one of the following would not require a process of acclimatization? A person going from daylight into a darkened room। उस वक्त भी मैंने आपको बता दिया था कि ये एग्जाम्पल जो है ये अडेप्टेशन की एग्जाम्पल है, ये एक्लेमेटाइजेशन की एग्जाम्पल नहीं है। नेक्स्ट मूव करते हैं बेटे। अकॉर्डिंग टू द पैसेज अ मेजर डिस्टिंक्शन बिटवीन एक्लेमेटाइजेशन एंड एडेप्टेशन इज दैट एक्लेमेटाइजेशन इज रिलेटिवली स्लो एंड एडेप्टेशन इज रिलेटिवली रैपिड। ये हमने उस वक्त पढ़ते हुए भी कर लिया था। B option is the right option. Then the word inured in line 20 most likely means, मैंने भी बताया था आपको पढ़ते हुए हमें अंदाज़ा भी हो रहा था कि इसका मतलब क्या है, used to हो जाना, ठीक है, आदी हो जाना। तो accustomed will be the correct option।
ठीक है, कि आप उससे जो है उसमें रह के क्या होते हैं, उसके आदी हो जाते हैं। द फंक्शन ऑफ पैराग्राफ 2 इन द पैसेज एज अ होल इज टू प्रोवाइड अ डेफिनेशन कॉरेस्पॉन्डिंग टू द एग्जाम्पल्स साइटेड इन पैराग्राफ 1, कि पैराग्राफ 1 में जो उसने एग्जाम्पल्स दी थी, आप अगर उसको देखें तो वो क्या कह रहे, पैराग्राफ 2 में उनकी बेसिस पे, वो जो सारी एग्जाम्पल्स दी हैं उनकी बेसिस पे क्या कर रहे हैं, एक्लेमेटाइजेशन को डिफाइन कर रहे हैं। अगर आप लाइन पैराग्राफ 2 की पहली लाइन ही पढ़ें तो वो कहते हैं लेट अस डिफाइन एक्लेमेटाइजेशन। ठीक है, कि पहले मैंने ऊपर सारी एग्जांपल्स दे दी हैं, अब इन एग्जांपल्स की बेसिस पे मैं क्या कर रहा हूँ, इन एग्जांपल्स की बेसिस पे मैं इसको एक्लेमेटाइजेशन के प्रोसेस को जो है वो डिफाइन कर रहा हूँ। ठीक है, सो ऑप्शन सी, प्रोवाइड अ डेफिनेशन कॉरेस्पॉन्डिंग टू द एग्जांपल साइटेड इन पैराग्राफ 1। द ऑथर इज मोस्ट लाइकली, क्या है जी ऑथर, अ रिसर्चर इन द फील्ड ऑफ अडेप्टिव मैकेनिज्म। ठीक है, यही हो सकता है, बायोलॉजी का स्टूडेंट नहीं लग रहा क्योंकि वो बायो से रिलेटेड कोई ऐसी बात नहीं कह रहा, वेटनरी सर्जन तो बिल्कुल नहीं लग रहा, एडिटर ऑफ अ साइंटिफिक पब्लिकेशन हो सकता है, लेकिन उसका सारा जोर साइंस पे नहीं है, उसका सारे का सारा जोर सिर्फ एक चीज़ पर है, अडेप्टेशन और एक्लेमेटाइजेशन। तो इसी पे अडेप्टिव मैकेनिज्म ही पर उसकी जो है वो हमें लग रहा है कि ग्रिप है। अब आए बेटे ज़रा सिनोनिम्स पे जल्दी से अगर हम इसको देखते जाएं तो द फर्स्ट वन इज़ कॉपियस। कॉपियस हम पहले भी गालबन पढ़ चुके, तो उसमें कॉपियस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा तादाद में होना, एबंडेंट क्वांटिटी में होना, प्रोफियन में होना। ठीक है, तो प्रोफ्यूज विल बी द राइट ऑप्शन। अब इसमें इनकलकेट देखें तो इनकलकेट होता है इम्प्लांट करना, एडप्ट करना, ठीक है, किसी चीज़ में शामिल करना। ठीक है, तो इनकलकेट जो है इसका ये मतलब है। प्रोफ्यूज ये आप पढ़ चुके, एक आपका वर्ड था, एक लाइन थी सॉरी, वो कहती है डेला हैड लॉन्ग ब्लॉन्ड हेयर इन द गिफ्ट ऑफ मेजाय में। ठीक है, डेला हैड लॉन्ग ब्लॉन्ड हेयर इन प्रोफियन, कि उसके जो बाल थे वो तो ब्लॉन्ड थे, लंबे थे और बहुत ही ज़्यादा घने थे। ठीक है, तो प्रोफ्यूज विल बी द राइट ऑप्शन। चाहे इसको कहते हैं नेट कर देना, बांध देना। ठीक है, कॉम्प्लिकेट, कॉम्प्लिकेट कहते हैं कम्प्लेक्स बना देना, टू मेक समथिंग कॉम्प्लिकेटेड। एंड एनर्जाइज कहते हैं पैशनेट कर देना किसी चीज़ को। ठीक है, और नेक्स्ट है जी कोलैबोरेट। कोलैबोरेट कहते हैं सपोर्ट करना। ठीक है, किसी चीज़ को स्ट्रेंथन करना। ठीक है, किसी चीज़ को अटेस्ट करना, अफर्म करना, इस कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल होता है। तो अफर्म दैट विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है, ट्रांसपेरेंट, अब इसको आप एक और तरह से भी जो है वो चीज़ों को ना देख सकते हैं। कोलैबोरेट हमने अभी किया कि जहाँ AT आएगा, ATE आएगा, वो क्या होगा, वर्ब होगा। क्लियर? अब आप देखिए ट्रांसपेरेंट, ENT मैंने आपको बताया था, ENT क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। ENT क्या होगा, जैसे इंटेलिजेंट, डिलिजेंट, ये क्या है, एडजेक्टिव्स हैं। तो ट्रांसपेरेंट भी क्या है, ट्रांसपेरेंट इज ऑल्सो एन एडजेक्टिव। गॉट इट जी? तो ये तो नहीं हो सकता क्योंकि वर्ब का सिनोनिम मैंने आपको बार बार बता चुका हूँ। पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर आप ये याद कर लेना, वो जो उनकी फॉर्मेशंस हैं, तो दैट इज़ अ ब्लेसिंग, कमाल हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या है, वर्ब है, तो वर्ब का सिनोनिम भी क्या होगा, वर्ब होगा। अफर्म, तस्दीक करना, ये वर्ब है, तो ये हम इसको ऑप्शन पे रख लेते हैं। फीबल, फीबल क्या है, एडजेक्टिव है। जैसे हाउ अ फीबल ओल्ड मैन कुड स्टैंड द ब्लो ऑफ दैट मैलेट, उसमें द फुलिश क्रैक में वो उसको कहते हैं, तो फीबल एडजेक्टिव है। इटर्नल, ये भी एडजेक्टिव है, इटर्नल कहते हैं हमेशा बाकी रहने वाला। ठीक है, और एप्रीहेंसिव, ये जो SIVE वाले हैं, ये भी जो है ये भी आपके एडजेक्टिव्स होते हैं। मैं लिख भी देता हूँ, SIVE वाले क्या होते हैं, दे आर ऑल्सो योर, जैसे हम कहते हैं कंप्रीहेंसिव, ठीक है, एप्रीहेंसिव,
IS SAVE वाले जो हैं ये क्या हैं, ये एडजेक्ट। तो ये सारे बाकी एडजेक्टिव्स हैं, हमने क्या पिक करना है, हमने करना है वर्ब पिक करना है। तो वर्ब इनमें से एक ही है, अफर्म। तो आपको कोलैबोरेट का मतलब नहीं भी आता, लेकिन अगर आपको ये पता है कि ATE वाले वर्ब होते हैं तो फिर आप क्या लगाएंगे, फिर आप अफर्म ही लगाएंगे और कोई वर्ड जो है वो इसके लिए चूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखें जी, क्रुक्ड। अब देखें क्रुक्ड क्या होता है, आपने पढ़ा हुआ है। एक तो क्रुक्ड का मतलब होता है बेंडिंग, बल खाता हुआ, और एक क्रुक्ड का मतलब होता है क्लेवर, चालाक। ठीक है, तो कॉशियस तो नहीं हो सकता, कॉशियस केयरफुल को कहते हैं। प्रोटेक्टेड, सेफ, साउंड, सेफ गार्डेड, ये भी नहीं हो सकता। प्रिवेंटिव, प्रिवेंटिव कहते हैं समथिंग दैट इज प्रोटेक्टेड। और स्प्राइटली, लाइवली, आपने उसमें पढ़ा भी हुआ है, in that jerky high pitched voice that still had a good deal of sprightliness in it। तो ये वही sprightly है। मिस्टर चिप्स का पहले ही लेसन आपका ये। उसके बाद नेक्स्ट, सो कनिंग, सी ऑप्शन जो है वो हमारी जो है वो करेक्ट ऑप्शन जो है वो कंसिडर होगी। देन एक्सटेम्पोर, एक्सटेम्पोर कहते हैं ऑफ हैंड कोई चीज़ बना लेना, फ़ौरन से कोई चीज़ तैयार कर लेना, कोई जिस ऐसी कोई चीज़ जिसमें कोई बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन जो है वो इन्वॉल्व ना हो, उसको हम क्या कहते हैं, एक्सटेम्पोर कहते हैं। तो प्रेजवर्दी, प्रेजवर्दी क्या है, समथिंग दैट डिमांड्स, दैट डिजर्व योर प्रेज, कोई ऐसी चीज़ जो आपकी तारीफ की हकदार है, उसको आप क्या कहेंगे, उसको प्रेजवर्दी कहेंगे। इम्प्रॉम्प्टू, इसको हम बाद में भी डिस्कस करते हैं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी कहते हैं अमेजिंग, वंडरफुल, एक्सेलेंट, इस कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल करते हैं। एडिशनल कहते हैं इजाफी, एक्स्ट्रा। और एक्सट्रिंसिक, अच्छा इसमें ना एक चीज ज़हन में रख लें, एक्स एक रूट वर्ड है, ये जिसके साथ भी लगेगा ना इसका मतलब होगा या तो एक्स्ट्रा या इसका मतलब होगा एक्सटर्नल, ये दो ही मतलब होंगे। और अब एक्सट्रिंसिक का मतलब भी क्या है, एक्सटर्नल, एक्सपोज्ड। एक्स लग गया इसके साथ, ठीक है, इजाफी, फालतू। ठीक है, मैं नेक्स्ट हम इसको देखते हैं, डिबंक। डिबंक जो है वो कहते हैं रद्द करना, रिफ्यूट करना, रिजेक्ट करना। ठीक है, डी का मतलब ये है, डी भी जहां लगेगा, देखिए डी, एबिलिटी, ये भी नेगेटिव वर्ड है। डी जहां भी लगेगा आप कहते हैं प्रेस, डिप्रेस, जहां भी डी लगेगा वहां क्या करेगा, उस वर्ड को नेगेटिव बना देगा। तो डिबंक, अब आपको पता चल गया कि नेगेटिव वर्ड है, आपने यहाँ पे नेगेटिव वर्ड देखना है। नेगेटिव वर्ड RE वाला है, ठीक है। रिफ्यूट, ठीक है, तो रिफ्यूट जो है दैट इज द राइट ऑप्शन। कन्फर्म, FORM वाला कन्फर्म जो है उसको हम कहते हैं कंप्लाई, ठीक है, किसी चीज़ के साथ बिल्कुल अमल करना, हिदायत वगैरह पर अमल करना, उसको कहते हैं। देन डिफाई, डिफाई कहते हैं रेजिस्टेंस शो करना, रद्द कर देना, मतलब डिफाई इन सेंस किसी हमले को जो है वो पसपा कर देना, शिकस्त दे देना। देन ट्रिगर, ट्रिगर कहते हैं हम स्टार्ट को, इनिशिएट करने को। और ब्लेंड, ब्लेंड हम कहते हैं मिक्स करने को, ठीक है। ये ब्लेंडर घर में अक्सर, मिक्सर ब्लेंडर अक्सर हमने सुना है, तो ब्लेंड उसका मतलब मिक्स करने ही होते हैं। तो डिबंक का जो है जो हमारे पास सिनोनिम बनेगा दैट विल बी रिफ्यूट। नेक्स्ट अगर आप देखते हैं तो हमारे पास आता है जी बैफल। बैफल कहते हैं परेशान कर देना, ठीक है, कंफ्यूज कर देना, ठीक है। तो एनलाइटन, एन एक पॉजिटिव रूट वर्ड है, ये जहां भी जाएगा एडअप करेगा, जैसे रिच से एनरिच, सर्कल से एन सर्कल, ठीक है। तो एन जहां भी आएगा पॉजिटिव मीनिंग में आएगा। तो एनलाइटन तो नहीं हो सकता, बैफल का मतलब क्या है, कंफ्यूज करना, तो एनलाइटन तो उसका बिल्कुल भी नहीं बनेगा। सिंक, डूब जाना, ठीक है। ग्रेटिफाई, टू बी ग्रेटफुल,
ठीक है, किसी का शुक्रगुजार होना बहुत ज़्यादा। देन टॉर्चर होते हैं तशद्दुद करना, हिट करना, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें करेक्ट मीनिंग उसका नहीं है। उसका करेक्ट सिनोनिम क्या है जी? पजल, कंफ्यूज, ठीक है, ऑप्शन ए। देन नेक्स्ट वन देखें जी, डेसोलेट कहते हैं ऐसी चीज़ जो कि बिल्कुल अब मतरूक हो चुकी हो, ठीक है, जिस पर जो बिल्कुल आबाद ना हो। तो स्विंडल कहते हैं रिड्यूस, उसमें आपने पढ़ा भी हुआ है, टू बी अमंग द स्विंडलिंग नंबर ऑफ पीपल, ठीक है, मिस्टर चिप्स में वो कहता है, ठीक है, तो वो कम होते हुए उन लोगों में शुमार होना। तो स्विंडल क्या मतलब है? रिड्यूस, श्रिंक, तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। देन समराइज कहते हैं सम अप कर देना। डिविएट कहते हैं रास्ते से हट जाना, भटक जाना, डिविएशन आपने सुना है अक्सर, ठीक है जी। एनकोड होता है टू कवर समवन, टू हाइड समथिंग। और डिजर्टेड इज द राइट ऑप्शन। डिजर्टेड क्या होता है? गैर आबाद चीज़, जो जिस पे अब जो है वो बिल्कुल कोई भी चीज़ आबाद ना हो। नंबर 16 पर जाएं जी, विंडिकेट कहते हैं बेसिकली आज़ाद कर देना, एमेंसिपेट, रिहा कर देना, माफ़ कर देना। तो एब्जॉल्व विल बी द करेक्ट ऑप्शन। एब्जॉल्व आपने ख़ास तौर पे आप जो यूनिक के आप में से जो बच्चे हैं, जो यूनिक के नोट्स आप लोग पढ़ रहे हो, ठीक है, उनमें उन्होंने ख़ास तौर पे पढ़ा होगा इसको, ठीक है, कि उसमें आपकी जो प्रपोजिशंस हैं उसमें है आई एब्जॉल्व हिम ऑफ हिज प्रॉमिस, कि मैंने उसे जो उसकी वादा था उससे बिल्कुल क्या किया? रिहाई दे दी, आज़ादी दे दी, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड हम करने जा रहे हैं जी, डेस्टिट्यूट। इसका जो विंडिकेट है, एब्जॉल्व इज द राइट ऑप्शन। डेस्टिट्यूट जो है बहुत ही गरीब शख्स को जो है वो हम कहते हैं, उसमें आप पढ़ चुके एंजल एंड द ऑथर एंड द अदर्स में, वो कहते हैं फॉर द डेस्टिट्यूट ब्रिटिश इन जोहान्सबर्ग, जब वो 6 पेनी फंड फॉर द डेली टेलीग्राफ, 6 पेनी फंड फॉर द डेस्टिट्यूट ब्रिटिश इन जोहान्सबर्ग। तो डेस्टिट्यूट का मतलब होता है इंतहाई गरीब, बिल्कुल पेनीलेस। आउटकम कहते हैं रिजल्ट को। एफर्ट, वी ऑल नो एफर्ट का मतलब होता है कोशिश करना। फेसिमाइल कहते हैं कॉपी करना, किसी चीज़ को बिल्कुल एज इट इज़ नकल कर लेना। और एपिलोग कहते हैं एंडिंग पार्ट ऑफ द स्पीच को, ठीक है, ये आप पढ़ चुके हैं मिस्टर चिप्स में। वो कहते हैं एन अनगेस्ड एपिलोग, ठीक है, जब वो अपनी फाइनल स्पीच जो है वो करता है। तो पैनलेस इज द करेक्ट ऑप्शन। देन कैंडिड कहते हैं एब्रप्ट, फ्रैंक। आप ये कैंडिड फोटोग्राफ्स भी लेते हैं, ठीक है। तो कैंडिड फोटोग्राफ्स क्या होती हैं कि जो प्लान करके नहीं होती, हमी को बंदा हंस रहा है, आपने फोटो खींच ली, तो क्या है कैंडिड फ्रैंकनेस में लेयरली जो है वो आपने खींच ली। वेग जो है हम कहते हैं अनक्लियर, मिस्टी, हेजी। परसुएसिव कहते हैं किसी ऐसी चीज़ को विच इज़ मेंट टू परसुएड, ठीक है, किसी बात को, किसी शख्स को किसी चीज़ पर कायल करने के लिए। देन एंशियस कहते हैं टेंस, ठीक है। और इवेसिव जो है, इवेसिव हम कहते हैं कंफ्यूजिंग, एनिग्मेटिक, ठीक है, कोई ऐसी चीज़ जो आपसे बचकर, अवॉइडिंग के मानों में भी जो है वो इसको यूज़ किया जाता है। देन एस्टूडियस कहते हैं बेसिकली बहुत मेहनती, डिलिजेंट के मानों में जो है वो इस्तेमाल होता है। एजिमुलेटिव कहते हैं बेसिकली एब्जॉर्ब्ड को, बहुत ज़्यादा जो अपने आप में डूबा हुआ शख्स है उसको कहते हैं। देन डिलिजेंट जो है, डिलिजेंट इज़ द राइट ऑप्शन। डिलिजेंट होता है मेहनती, काबिल आदमी, बड़े जान मारने वाला, उसको डिलिजेंट कहते हैं। परवर्टेड कहते हैं डिस्टॉर्टेड, फेक, खुद से जाली तौर पर कोई चीज़ जो है वो बनाई जाती है उसको। कर्सरी कहते हैं रफ, टेम्परेरी, जलते जलते नज़र मारना, ठीक है, उसको कहते हैं कर्सरी। एंड देन हेस्टी कहते हैं क्विक, रैपिड, तेज़ी से जो काम हो रहा होता है उसको हम कहते हैं हेस्ट मेक्स वेस्ट। आपने अक्सर वो स्टोरी जो है वो हमने बहुत ही बार, सारे ही लोगों ने बचपन में बेशुमार बार जो है वो पढ़ी होती है।
तो ये तो आपके जो है सिनोनिम्स थे। अब हम आते हैं एंटोनिम्स पे। डॉक्ट्रिनायर पहला वर्ड है जी। डॉक्ट्रिनायर होता है कॉमन सी कोई चीज़, उसको आप कहते हैं, ठीक है, जो सबके लिए एप्लीकेबल हो, ठीक है। तो ऑर्नेट, ऑर्नेट कहते हैं एलैबोरेट करने को, ठीक है। ये तो उसका बिल्कुल कोई ताल्लुक ही नहीं बनता। हॉस्पिटेबल कहते हैं द वन हु इज़ वेरी फ्रेंडली। क्योरेबल, a disease that can be cured, that can be treated, treatable. Dogmatic, dogmatic कहते हैं रिवायती, ट्रेडिशनल, ऑर्थोडॉक्स, ठीक है, कन्वेंशनल, इन मानों में। तो ये तो डॉक्ट्रिनायर का जो है वो एक तरह से सिनोनिम है। आइकॉनोक्लास्टिक, दैट इज़ द राइट वर्ड। आइकॉनोक्लास्टिक कहते हैं आइकॉन से आप याद रख सकते हैं। आइकॉन क्या होता है? दैट इज़ डिफरेंट, जो बिल्कुल मुख्तलिफ होता है, सबसे हट के होता है, उसको आप क्या कहते हैं? यार ये बड़ा आइकॉनिक फिगर है। तो आइकॉनोक्लास्टिक से जो है वो आप इसको याद रख सकते हैं। देन मैनर्ड, नंबर 21 पर आए जी। तो मैनर्ड क्या है जी? बड़ा कल्चर्ड आदमी को कहते हैं, सोबर आदमी को कहते हैं। वेरीगेटेड, वेरीगेटेड कहते हैं जो चेंज होता रहता है। अर्बेन, ये तो मैनर्ड का सिनोनिम है। अर्बेन क्या होता है? सोफिस्टिकेटेड, बड़ा ग्रेसफुल, टैलेंटेड, बड़ा अच्छा आदमी, कल्चर्ड आदमी, ठीक है। अनस्टडीड, अनस्टडीड इज द करेक्ट एंटोनिम। अनस्टडीड क्या है? उजड़, गंवार, ठीक है, कोई जिसको तमीज़ नहीं है। पोलाइट भी मैनर्ड के मानों में ही आता है, और ग्रेसफुल भी क्या है? मैनर्ड के मानों में ही आता है। नंबर 22 पर जाएं जी। डेवियस, डेवियस कहते हैं हम डेवियस कहते हैं अ पर्सन हु इज़ डबियस, हु इज़ कनिंग, हु इज़ नॉट ट्रू, नॉट फेयर इन हिज डीलिंग्स, उसको हम डेवियस कहते हैं। तो उसका उलट जो है वो क्या बनेगा? दैट विल बी ऑनेस्ट, दैट विल बी ऑनेस्ट, ठीक है जी। सो उसको हम जो है वो डेवियस कहते हैं। देन क्रिटिसाइज, तो रेप्रीमेंड, सेंश्योर के मानों में आते हैं। नलिफाई कहते हैं बिल्कुल किसी चीज़ को जो है टोटली रिजेक्ट कर देना। एंड एग्जाइल होता है टू मूव अब्रॉड फोर्सफुली, किसी चीज़ को ज़बरदस्त, किसी शख्स को ज़बरदस्ती जब आप बाहर भेज देंगे तो उसको आप कहेंगे कि ही इज़ एन एग्जाइल, जलावतनी उर्दू में कहते हैं। और एब्सकॉन्ड कहते हैं इश्तिहारी होकर बाहर भाग जाना, एब्सकॉन्डर, ठीक है, कि आप पर मुकदमात चल रहे हैं और आप बाहर भागें, ठीक है, तो इसको कहते हैं या पुलिस से भागे, ज़रूरी नहीं कि आउट ऑफ कंट्री जाएँ, यहाँ भी अगर आप भागे तो उसको कहते हैं एब्सकॉन्ड। देन डेब्यूटेंट, डेब्यूटेंट आपने अक्सर क्रिकेट मैचेस हम सभी देखते हैं, उसमें आपने सुना होगा कि आज इस लड़के का डेब्यू है, ठीक है। तो वो जो डेब्यू करने वाला बच्चा है, जो पहले दिन खेल रहा होता है, उसको कहते हैं डेब्यूटेंट। इसका उलट क्या होगा? वेटरन, ठीक है। वेटरन कहते हैं एक्सपीरियंस पर्सन को, आपने पढ़ा भी हुआ है आई हैव अ ड्रीम में, वो कहते हैं कि यू आर द वेटरन्स ऑफ क्रिएटिव सफरिंग, कि आप जो हैं क्रिएटिव सफरिंग्स के क्या हैं? बड़े तजर्बाकार, आजमूदा जो है वो सिपाही हैं। सैपलिंग जो है ये एक छोटे से पौधे को कहते हैं, उसमें आपने पढ़ा भी है क्लियरिंग इन द स्काई में, और कहते हैं व्हाइल आई मैनेज टू होल्ड माई, व्हाइल आई मैनेज टू स्टैंड on the path by holding on to a little sapling because the ground was too steep for my feet to hold until I braced myself. Then fluctuating, fluctuating कहते हैं changing, हम ये कहते हैं लाइट fluctuate कर रही है, changing, changing के मानों में आता है। sophisticated, sophisticated आता है decent के मानों में, बड़े वही cultured, mannered, sober, graceful के मानों में। bald कहते हैं गंजा, ठीक है, तो ये तो बिल्कुल ही डेब्यूटेंट का किसी भी सूरत में नहीं बनता। देन नंबर 24 पे देखें जी। एक्साइट, एक्साइट होता है जोश दिलाना, तैश दिलाना किसी को, ठीक है। तो एंटेगनाइज, ये तो उसका सिनोनिम है। एंटेगनाइज का मतलब भी यही होता है कि किसी को तैश दिलाना। स्टूपेफाई, स्टूपेफाई इज द करेक्ट ऑप्शन। स्टूपेफाई होता है किसी चीज़ को बिल्कुल उसकी जो जज्बात है उसको सर्द कर देना। डिसलोकेट, डिसलोकेट होता है आपके ये जो हाथ पांव जोड़ वगैरह निकल जाते हैं, ठीक है। डिस्पोजिशन कह सकते हैं। डिस्पाइज, डिस्पाइज कहते हैं नफरत करना, ठीक है, आपने उसमें पढ़ा भी हुआ है टिप्स में,
वो कहता है कि had it been someone else they might have despised him for this weakness। और evict कहते हैं खाली कर देना। लास्ट हमारे जी 2-4 एमसीक्यूज जल्दी से हम इसको डिस्कस कर लें। डिसल्ट्री जो है वो हम कहते हैं रैंडम बिखरे हुए, ठीक है, आपने पढ़ा भी हुआ है। ही वेंट इवन सो फार टू मेकिंग डिसल्ट्री नोट्स, जब वो अपने बुक लिखने की बात करता है मिस्टर चिप्स, तो वहाँ वो कहता है कि डिसल्ट्री नोट्स भी जो है वो उसने अपने बना लिए थे। तो वो रैंडम बेतरतीब बिखरे हुए। तो जॉली हम कहते हैं खुश को, ठीक है, जॉली लिटिल फेलो, इसमें भी चिप्स में भी आपने पढ़ा हुआ है, बार बार वो कहते हैं, ठीक है। फर्टिव कहते हैं राजदाराना, ये भी आपने पढ़ा हुआ है उसमें ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक्स में। वो कहते हैं कि विच बट आई कैन नॉट हेल्प द स्लाइट अनईज दैट कम्स टू ऑल दोज हु आर आइड सस्पिशियसली बाय द पुलिस और हु आर डेलिबरेटली कॉट इन any furtive act, how harmless it, however it may be harmless, ठीक है। तो वहाँ भी आपने इसको पढ़ा हुआ है। तो ऑर्गेनाइज इज द राइट ऑप्शन। डिसल्ट्री क्या है? बिखरे हुए, बेतरतीब, और सही बात क्या होगी? ऑर्गेनाइज्ड। देन सेंटिमेंटल कहते हैं जज्बाती, और कॉस्टिक भी जो है वो कहते हैं जज्बाती। डिपोर्ट हमने पढ़ा, डिपोर्ट कहते हैं बेसिकली, हमने उसमें पढ़ा भी था जब हम वोकैबुलरी वाला अपना लेक्चर कर रहे थे कि पोर्ट क्या है? मूव करना। उसमें मैंने आपको डिपोर्ट लिखवाया भी था, ज़बरदस्ती किसी को बाहर भेज देना, अपने मुल्क से बाहर निकाल देना, उसको कहते हैं डिपोर्ट। ब्लफ कहते हैं चीट करने को, ठीक है, तो ये तो बिल्कुल नहीं आएगा। डी कैम्प, ठीक है, आपने पढ़ा हुआ उसमें एवरीवेयर इज डी कैंपिंग टॉक, बुला माय नेबर फ्रेंड ब्रीदिंग इज लास्ट में, ठीक है। एम्बेजल कहते हैं सजाना संवारना। ड्रेन कहते हैं वेस्ट कर देना, ठीक है। तो इसमें से तो कोई भी उसका एंटोनिम नहीं है। तो इनवाइट इज द राइट, सिनोनिम कह रहा हूँ, एंटोनिम। इनवाइट इज द करेक्ट एंटोनिम। कि डिपोर्ट क्या है? ज़बरदस्ती धक्के मार के बाहर निकाल देना, और इनवाइट क्या है कि उसको खुद जो है वो अपनी तरफ बुलाना। कॉकशोर कहते हैं बड़ा एरोगेंट, ठीक है। चिप्स उसके बारे में याद कहते हैं, टू कॉकशोर ऑफ हिमसेल्फ, रॉल्सन के बारे में कहते हैं। फैसिलिटी क्या है? सहूलत, एम्यूनिटी, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ऑडेसिटी कहते हैं ब्रेवनेस, ठीक है, स्टाइल को भी कहते हैं। विट्रोसिटी कहते हैं नेकी को, पाइटी को, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। वैनिटी कहते हैं एरोगेंस को, तो ये तो कॉकशोर का ऑलमोस्ट सिनोनिम बन गया। तो इसका एंटोनिम क्या होगा? इसका एंटोनिम होगा शाय, ठीक है। कि कॉकशोर है एक शख्स बड़ा मगरूर है, और दूसरा क्या है? उसके मुकाबले में बड़ा शर्मीला है। नॉर्म कहते हैं रिवायत को, कस्टम को। रूटीन तो नॉर्म ही बन गई। बेंचमार्क कहते हैं स्टैंडर्ड को। देन वाटरशेड कहते हैं पानी का जो धारा है उसको। और एनोमली जो है एक वर्ड है, एनोमली का मतलब होता है वेरिएंस, डिफरेंस, चेंज। तो ये इसका राइट एंटोनिम है कि नॉर्म क्या है? रूटीन है, और एनोमली क्या है? रूटीन से हट कर जो है वो कोई काम करना है। और मोड, वी ऑल नो कि मोड हम किसको कहते हैं? मोड हम कहते हैं तरीक़ेकार को। सोबर आखिरी सेकंड लास्ट सिनोनिम हमारा बेटे। सोबर जो है वो हम कहते हैं ग्रेसफुल को, बड़ा डिसेंट आदमी। इसका सिनोनिम एंटोनिम क्या होगा? इसका एंटोनिम होगा ड्रंक, ठीक है। टून आदमी है, उसको कुछ पता नहीं है, कोई होश नहीं है, हमें बदतमीजियाँ किए जा रहे हैं, ठीक है। तो उसको हम जो है वो सोबर का जो एंटोनिम बनाएंगे दैट विल बी ड्रंक, ठीक है। इसके बाद सुपरफिशियल, लास्ट आपका वर्ड, ठीक है। सुपरफिशियल का कंटेम्प्रेरी जो है वो हम कहते हैं हम असर। सुपरफिशियल कहते हैं फेक, ठीक है, जाली। फेशियल से मुराद ही है फेस अपीयरेंस। सुपरफिशियल बहुत ही बढ़ा चढ़ा के अपीयरेंस इसकी बयान की हो। तो कंटेम्प्रेरी कहते हैं अपने ही हम असर लोग। सपोज इस वक्त बाबर आजम खेल रहा है, तो उसके जितने बैट्समैन इस वक्त खेल रहे हैं दे आर द कंटेम्प्रेरीज ऑफ बाबर आजम। जेन्युइन इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है। जेन्युइन ही सही है, क्योंकि सुपरफिशियल क्या मैंने बताया कि सुपरफिशियल हम कहते हैं फेक को, और फेक का उलट क्या होगा? ऑब्वियसली दैट विल बी जेन्युइन। प्लॉजिबल कहते हैं
लॉजिकल के मानों में जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, अप्रिशिएबल के मानों में भी जो है वो इस्तेमाल करते हैं। देन एक्लेम्ड कहते हैं अप्रिशिएटेड, जिसकी बहुत ज़्यादा जो है वो तारीफ़ की जाए, जिसकी बहुत ज़्यादा सताइश की जाए। मेरिटोस, मेरिट से आप इसको याद कर सकते हैं। मेरिटोरियस जो है उसको हम मेरिट से याद कर सकते हैं। मेरिट क्या है कि किसी शख्स को, हकदार को उसकी जगह पर पहुंचाना। तो मेरिटोरियस क्या होगा? मेरिटोरियस वही चीज़ होगी जो कि बिल्कुल डिज़र्विंग लोगों को जो है वो फराहम की जाए, ठीक है जी। सो दैट एंड्स आवर डिस्कशन फॉर टुडे बेटे। इस टेस्ट की डिस्कशन हम ख़त्म करते हैं। अब आपके जो सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स के टेस्ट हैं ये अब आपके एक्यूमुलेटिव टेस्ट में जो हैं आपके होंगे, लेकिन आपने साथ साथ, चूँकि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का टेस्ट हमारा हर एक टेस्ट में ऐड होता रहेगा, तो आपने वोकेबलरी का काम जो है वो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, उस पर काम करना जारी रखना है, उसको याद करना, पढ़ना, कुछ ना कुछ उसको स्टार्ट करना जारी रखना है, ठीक है जी बेटे। दैट इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, जीते रहें, थैंक यू।